Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning on the 15th of June 2020. We are now starting with the second part of the chapter that we were covering, and that was chapter number 39 from Levinson's 15th edition. We are going to cover the second part of the remaining chapter, that is the viruses with the animal reservoir. So let's see what are the viruses. वैसे तो बहुत सारे viruses होते हैं, लेकिन आपकी लेविंसन 15th एडिशन में जो viruses दिए हुए आज हम उनको कवर करेंगे और remaining viruses जो हैं वो आगे आने वाले chapters में कवर हो जाएंगे. Let's have a look on the slide. आपके जहन में ये स्लाइड देखते ही पिक्चर देखते ही क्या चीज़ आती है? अभी ऊपर की स्टेटमेंट को रहने दें और जस्ट एक पिक्चर देखें. लग रहा है कि ये किसी ऐसे इलाके की न्यूज़ है जहाँ पे डॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं. So let's have a look on the statement, and the statement quote says, "The Livestock Department of KPK has announced cash reward for catching of stray dogs in the vicinity of provincial capital." And this is a news of 2019. Which disease comes in your mind after having a look at this picture? अभी पिछले दिनों फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और न्यूज़ में भी आई गेस एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें लाहौर के एक पार्क में कोई बच्चा है छोटा सा 7-8 साल का जिसकी टांग पे डॉग बाइट हो रहा है, आर्म पे उसकी नेक पे, और वहाँ 3-4 लोग खड़े हैं और बड़ा शोर मच रहा है. ये अभी आज है लाइक 15th of June, तो ये पिछले हफ्ते का वाक़या आई गेस, एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लाहौर. तो कौन सी डिज़ीज़ आती है हमारे जहन में? एंड द डिज़ीज़ इज़, अच्छा अभी लेट्स सी, अभी डिज़ीज़ की स्लाइड नहीं आई. लेट्स deal with an emergency case in which a school going child is brought to the emergency of your hospital with history of fever, anorexia and pain on water intake. जब उसको पानी देते हैं, लुक एट द पिक्चर के पानी देते हुए उसकी देखिए ज़रा हालत कैसे हो रही है, एंड ही इज़ वेरी अफ्रेड टू टेक अ सिप ऑफ वाटर. ऑन एग्जामिनेशन, जब हमने एग्जामिन किया उसको, देयर इज़ एन एनिमल बाइट वुंड ऑन द आर्म. Now what is your diagnosis and what is the pathogenesis of this specific disease? How will your lab diagnose the causative agent and how will you manage the disease? So the disease is rabies, and the virus that causes rabies is called as rabies virus. The disease is characterized by encephalitis. Encephalitis के इसमें sign और symptom होती हैं. Have a look on the rabies virus structure. See, this is a bullet shaped virus. और इसमें हम start करते हैं M protein, फिर there is another N protein, G proteins हैं, RNA है अंदर, P protein है, L protein, and there is an envelope. This is a bullet shaped virus कह सकते हैं इसको हम, और bullet shape ही कहेंगे, brick shape नहीं कहेंगे, bullet shape. While explaining the replication cycles, which points we have to consider? Number 1, लाइन देखिए लिखी हुई है acetylcholine receptors. रेड कलर में लिखी हुई है, the virus binds with the acetylcholine receptors. And have a look on from point 1. ये आपके 3 o'clock पोजीशन से स्टार्ट करते हैं हम. पॉइंट नंबर 1 है एड्जॉर्प्शन हो रही है वायरस की रिसेप्टर पे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे, और वायरस ने इंटरेक्ट किया सेल के साथ, पेनेट्रेट किया, वायरस एंट्री हो गई. कमिंग टू द 12 o'clock पोजीशन, अनकोटिंग हुई, वायरल का जो एनवेलप था वो रिमूव हुआ. फिर ट्रांसक्रिप्शन हुई जिसमें सिंथेसिस हुई मैसेंजर आरएनए की, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की, प्रोसेसिंग होगी जहाँ पे जी प्रोटीन सिंथेसिस बनेगी. उसके बाद नंबर 7 पे रेप्लिकेशन होगी जहाँ पे जीनोमिक आरएनए इंटरमीडिएट स्ट्रैंड से बन रहे हैं. आखिर में असेंबली हो रही है, और पॉइंट नंबर 9 पे बडिंग हो रही है जहाँ पे कंप्लीट वायरॉन्स जो हैं वो एग्जिट हो रहे हैं सेल से. Which disease is transmitted by saliva of infected dogs? Recall the steps of transmission.
अब जब ट्रांसमिट हो गया, डॉग बाइट हो गया, तो क्या होगा? वायरस एंटर्स द टिश्यू फ्रॉम द सलाइवा ऑफ बाइटिंग एनिमल. It replicates in the muscle near the bite. It moves up peripheral nervous system to CNS in the spinal cord. वायरस असेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड में और रीच हो जाता है ब्रेन में, जहाँ पे ये फेटल एनकेफेलाइटिस कॉज करता है. It may enter the salivary glands and other organs of the victim. So this is all the steps of how the virus transmits and how it travels along the body of a human being. Starting with the properties, rabies virus जो है, it is the only medically important member of rhabdovirus family. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसका, बुलेट शेप होगा कैप्सिड, लाइपोप्रोटीन्स होंगी, नेगेटिव पोलैरिटी जीनोम है, वायरॉन पॉलीमरेज होता है इसमें, सिर्फ एक सीरोटाइप है और इसकी ब्रॉड होस्ट रेंज. एनिमल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं और बैट्स भी हैं, मंकीज भी हैं, एक्सेट्रा. रेप्लिकेशन साइकिल अभी हमने पढ़ ली थी. अटैच करेगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से जो कि सेल सरफेस पे है. जब एंट्री हो जाएगी सेल में, वायरॉन आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है 5 मैसेंजर आरएनए को, और 5 मैसेंजर आरएनए ये कोड करती हैं वायरल प्रोटीन्स के लिए. रेप्लिकेशन जब जीनोम वायरल आरएनए की हो जाएगी, अब ये किस तरह होगी वायरल जीनोम आरएनए की रेप्लिकेशन? वायरस एनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज होगा, जिसके हमें प्रोजेनी आरएनए असेंबल हो जाएंगे विद इन वायरल प्रोटीन्स. उसके बाद न्यूक्लियोकैप्सिड्स बनेंगे और एनवलप एक्वायर हो जाएगा और वायरॉन जो है वो बडिंग करते हुए सेल से निकल जाएगा. एनवलप जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग थ्रू द सेल एक्वायर होगा. ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी? बाइट ऑफ अ रेबिड एनिमल. और रेबिड एनिमल का जो है ना वो मैनिफेस्ट कर सकता है एग्रेसिव बिहेवियर, बाइटिंग बिहेवियर. और ये क्यों होगा? क्योंकि वायरल एनकेफेलाइटिस वहाँ पे कॉज कर रहा होगा एनिमल के अंदर. और वायरस कहाँ होता है? सलाइवा ऑफ द रेबिड एनिमल. यूएसए में बाय द बाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ पे रैकॉन्स होते हैं, बैट्स हैं, डॉग्स हैं. और रैकॉन्स और जो बैट्स हैं या स्कंक्स हैं, उनके बाइट से यूएसए में ज़्यादा होता है. वहाँ पे डॉग्स को और कैट्स को इम्यूनाइज कर दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ ये स्टिल that is one of the prevalent disease that is caused by the bite of rabid animal, and that is the main cause. The main animal here is the dogs. अब होता क्या, ये जो यूएसए में वाइल्ड एनिमल्स हो गए, बैट्स हो गई. अच्छा, एक और तरह होता है इसमें जिसको हम कहते हैं नॉन बाइट एक्सपोजर्स. नॉन बाइट एक्सपोजर्स में क्या होगा कि वहाँ पे किसी एनिमल ने बाइट तो नहीं किया, लेकिन एक्सपोजर हो गया एरोसोल्स ऑफ बैड सिक्रेशंस. जो लोग केव्स में काम करते हैं, गारों में रहते हैं, या वहाँ पे जहाँ पे बैट की प्रेवलेंस ज़्यादा है, जंगल्स में है, तो वहाँ पे जो एरोसोल्स हैं, वहाँ पे उनका एरोसोल से एक्सपोजर हुआ है जिसमें बैट सिक्रेशंस थी. या कुछ पेशेंट्स में भी देखा गया है जिनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ हो. यूएसए में कैनाइन रेबीज फ्री डिक्लेयर कर दिया था. यूएसए 2007 में कैनाइन रेबीज फ्री हो गया था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन है डॉग्स की. हर साल वैसे दूसरी तरफ देखा जाए वर्ल्ड वाइड 50,000 डेथ्स होती है ड्यू टू रेबीज. और स्ट्रेन्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि कहाँ का स्ट्रेन है? बेस सीक्वेंस करते हैं जीनोम आरएनए की. फॉर इंस्टेंस एक आदमी है जो कि पाकिस्तान से ट्रैवल करके किया है यूएसए, और उसको हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट यहाँ हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन कुछ वीक्स बाद जाके साइन सिम्टम मैनिफेस्ट हुए. तो जब हमने बेस सीक्वेंस की उसके जीनोम आरएनए की, तो पता चला कि ये स्ट्रेन यूएसए का नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ. Here comes a brainstorming exercise. Name a few viral diseases that are transmitted by animals. Name a disease that is a threat to millions in Pakistan. Name the virus along with its pathogenesis, clinical features, lab diagnosis, treatment, and management. पैथोजेनेसिस में क्या होगा अब इसकी? यहाँ पे ये कि वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करता है लोकली बाइट साइट पे, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा था. लोकली मल्टीप्लाई करेगा बाइट साइट पे, उसके बाद इन्फेक्ट कर देगा सेंसरी न्यूरॉन्स को, और वहाँ से मूव करेगा एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
अब ये जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है नर्व के अंदर अंदर तो वायरस जो है वो शेल्टर्ड हो रहा है इम्यून सिस्टम से, और इम्यून रिस्पॉन्स जो है या तो कम होता है अगर होता है या नहीं होता। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो शेल्टर्ड हुआ हुआ है नर्व के अंदर ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल। वायरस मल्टीप्लाई करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और फिर पेरिफेरल नर्व्स में जाता है और वहाँ पे कहाँ पे पहुँचता है? सलाइवरी ग्लैंड्स में या फिर अदर ऑर्गन्स में। सीएनएस में जब जाएगा तो एनकेफेलाइटिस कॉज करेगा, न्यूरोनल डेथ होगी, डीमाइलिनेशन हो जाएगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नेग्री बॉडीज। नेग्री बॉडीज क्या होती हैं? ये इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स होती हैं, राइट? और ये कहाँ पे होती है? ये इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स में होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डेथ ऑफ न्यूरॉन्स है, डीमाइलिनेशन है, और इनके अंदर हम देखेंगे नेग्री बॉडीज। नेग्री बॉडीज जो होती हैं दे आर इम्पॉर्टेंट इन द लैब डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स भी हो सकता है, 16 वीक्स भी हो सकता है, या इवन लॉन्गर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बाइट जो है वो कहाँ पे। अगर किसी जैसे पिछले दिनों वो आ रहा था फेसबुक और टीवी पे, बच्चे को अगर लेग पे या फुट पे बाइट किया हुआ है तो अभी वायरस ने पूरा नर्व्स का और पूरा ट्रैवल करना है, तो इट मे टेक लॉन्गर टाइम। ऑन द अदर हैंड अगर किसी को फेस पे, आर्म पे बाइट किया तो इट मे टेक ओनली अ फ्यू वीक्स। इसमें मुझे याद आया हमारे एक मिलने वाले थे इन एबटाबाद। देयर वर 2 ब्रदर्स और एक बच्चे का एडमिशन हो गया था ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में। तो वो अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे थे बिकॉज इन द कमिंग डेज ही वॉज सपोज टू फ्लाई। उसमें ये हुआ कि अम्मी अब्बू गाड़ी से उतर गए, दूसरा भाई भी उतर गया। ये जो भाई जिसका ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हुआ था ये अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर रहा था, एक रेबिड डॉग ने इसको आके बाइट किया था फेस पे एंड द गाय डाइड। एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ बैक इन 2004-2005। ये भी मुझे याद आई है। बहरहाल एनीवेज, अच्छा अभी स्टार्ट कैसे होती है? प्रोड्रोमल फेज होगा जिसमें फीवर है, एनोरेक्सिया है, पैरास्थेसिस है जिसमें हम कहते हैं चेंजेस इन द सेंसेशन, आप कह लें चेंज हो जाएंगी सेंसेशन में, और जहाँ पे बाइट साइट होगी। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक फ्यूरियस होते हैं जिसमें एनकेफेलाइटिस रिजल्ट होता है, एक डम्ब होते हैं जिसमें पैरालिसिस हो जाता है। फ्यूरियस फॉर्म जो है वो 80% ऑफ द केसेस में फ्यूरियस फॉर्म होती है, जिसमें एजिटेशन होगा, डिलेरियम होगा, सीजर्स हैं, हाइड्रोफोबिया है, दैट वॉज पेन ऑन द स्वेलविंग ऑफ वाटर। क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को डर लगता है और वो पानी के करीब नहीं जाता। हाइड्रोफोबिया होता क्या है? स्वॉलोइंग वाटर बिकॉज ऑफ पेनफुल स्पाज्म ऑफ द पेरेंजियल मसल्स। डम्ब फॉर्म में क्या होता है? ये सिम्टम्स जो है कोई नहीं अगर होती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है प्राइमरी इन्वॉल्व होती है और असेंडिंग पैरालिसिस अकर हो जाता है। डेथ जो है वो अकर होती है दोनों फॉर्म में, लेकिन चूंकि आजकल एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स आ गए हैं लिहाजा कुछ पेशेंट्स जो हैं रेबीज़ के वो सर्वाइव कर जाते हैं। बट अगेन इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ आवर डेवलपिंग कंट्री। लैब डायग्नोसिस, पिछले साल बहुत सारे केसेस आए थे, दैट वाज फ्रॉम सिंध प्रोविंस, जिसमें लाड़काना में और उस तरफ बहुत सारे रेबिड डॉग्स के बाइट्स के केसेस आए थे। न्यूज़ पे भी दिखाए थे, प्रोमोट हुए थे न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे उन लोगों को वैक्सीनेशन तक नहीं मिली थी। द लैब डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एनिमल में क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है। तो एनिमल में डेवलप्ड कंट्रीज़ में किया जाता है, यहाँ पे ह्यूमंस पे हो जाए तो लेट्स सी के वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एनिमल में ब्रेन टिश्यू ले सकते हैं, उसके ऊपर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी नेग्री बॉडीज़। देखते हैं आगे नेग्री बॉडीज़ क्या हैं, सेल कल्चर भी कर सकते हैं। ह्यूमन में क्या करेंगे, बायोप्सी स्पेसिमेन लेंगे, सीएसएफ सलाइवा को ले सकते हैं, ब्रेन टिश्यू, स्किन ऑफ द नेक एट द हेयर लाइन, ये पीछे से स्किन नेक की ले सकते हैं हेयर लाइन पे से। उसके बाद नेग्री बॉडीज नज़र आएंगी, कहाँ होंगी वो, हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में। कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स और ऑटोप्सी ब्रेन स्पेसिमेन की। अब ये सारी चीज़ें ये वाली जो हैं ये ऑब्वियसली ये कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स हो गई, ऑटोप्सी ब्रेन स्पेसिमेन की है, ये आफ्टर डेथ है। This picture on the right side, it demonstrates the Negri bodies.
ये हिपोकैम्पल न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में ये पड़ी हुई है और जिसको हम कहते हैं नेग्री बॉडीज। और वर्ल्ड रेबीज डे होता है हमारा, दैट इज़ ऑन 28th of September. A daily threat to millions in Pakistan. Aga Khan भी reported, rabies is most often transmitted through the saliva of infected dogs, cats and bats. It's deadly unless intercepted with treatment before the virus reaches the nervous system. जब नर्वस सिस्टम में एक दफ़ा वायरस पहुंच गया है और वहाँ जाके उसने मल्टीप्लिकेशन और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को बाइंड कर दिया है, then there is nothing you can do. So if bitten, get vaccinated immediately. This is a public service message by Aga Khan University Hospital. अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ रेबीज़ वैक्सीन। अब हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन प्लान पे आ रहे हैं। ये हिस्टोरिकली देख लेते हैं। 1885 में लुई पास्चर ने डेवलप की थी अर्लीस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन। 6 जुलाई 1885 को हुआ था। 1930s में फिर क्या हुआ? देन दे इनएक्टिवेटेड इन्फेक्टेड शीप और गोट ब्रेन विद केमिकल एजेंट्स। फिनोल के साथ उन्होंने ट्रीट किया, केमिकल एजेंट्स के साथ किया, उनको इनएक्टिवेट किया और फिर उनको एज वैक्सीनेशन यूज़ किया। दूसरी तरफ उन्होंने इनएक्टिवेटेड इन्फेक्टेड चिक एम्ब्रियोस और इन्फेक्टेड सकलिंग माउस ब्रेन को भी यूज़ किया। 1970s, coming to 1917, that is after one millennium ये गुजर चुका है तकरीबन 1885 से 1970s। डेवलपमेंट ऑफ सेल कल्चर फॉर वायरस प्रोपोगेशन इनिशिएट हुआ था और उसके बाद फिर ग्रोथ हुई फिक्स्ड रेबीज़ वैक्सीनेशन की ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में, और इसको हम क्या कहते हैं? HDCV, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीनेशन। ऑल्टरनेटिव क्या था इसका ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीनेशन का? प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो सेल्स। So this is a history of vaccination development of rabies. अब आप ये देखें, ये इसी स्लाइड पे जाते हैं, आप ये देखें, इट टुक अराउंड 100 years to develop a vaccination starting from 1885 till 1970s and still the research is going on. 1970s को भी अब आप ये देखें कि तकरीबन 50 years तो गुजर चुके हैं ना। So the prevention and treatment consist of two types. एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वैक्सीन्स की, और किन लोगों को करेंगे? जो हाई रिस्क ग्रुप्स होंगे। फॉर इंस्टेंस जो ये पीस मिशन पे जाते हैं, जंगल्स में जाते हैं, या ये केव्स में काम कर रहे हैं, जू कीपर्स हैं, जिनका एनिमल से बहुत कॉन्टैक्ट है। आप BBC पे आप और ये नेशनल ज्योग्राफिक पे जो आप मूवीज़ देखते हैं जिसमें एक्सप्लोरर्स होते हैं, उनके लिए जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में क्या करेंगे? एक तो हम एडमिनिस्टर करेंगे वैक्सीन अलॉन्ग विद वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज सच एज ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे उसको, या एक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम वैक्सीन भी देते हैं और हम एंटीबॉडीज भी देते हैं। एंटी रेबीज़ वैक्सीन अब कितने तरह की होती हैं? एक होती है न्यूरल टिश्यू वैक्सीन, एक है प्योरीफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन, एंड द थर्ड वन इज़ टिश्यू कल्चर वैक्सीन। ये वैसे ही मुझे एक स्लाइड अच्छी लगी थी इसलिए मैंने डाल दी, इट्स नॉट प्रेजेंट इन योर बुक। तो न्यूरल टिश्यू वैक्सीन है, प्योरीफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन है और टिश्यू कल्चर वैक्सीन। कमिंग टू द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, अब पहले इस तरह करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ और फिर हम ये क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेंगे। ट्रीटमेंट कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है जबकि एक पेशेंट को रेबीज़ डेवलप हो जाए। सिर्फ हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे जिसमें हम उसके सिम्टोमेटिक साइन और सिम्टम्स को उसको ट्रीट करेंगे। फीवर है, एनोरेक्सिया है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, कोई साइन सिम्टम्स एनकेफेलाइटिस की हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसको करेंगे। क्लीनिंग ऑफ द वुंड है, डिब्राइडमेंट ऑफ द वुंड है, जिस तरह हम वुंड डिब्राइड करते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं और उसके ऑब्जर्व करेंगे साइन और सिम्टम। प्रिवेंशन में क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट में तो रेबीज़ वैक्सीन उसके अंदर होता है इनएक्टिवेटेड वायरस जो कि ग्रोन हुआ हुआ होता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में,
और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन में क्या होता है, डक एम्ब्रियो वैक्सीन होती है या नर्व टिश्यू वैक्सीन्स होती हैं, ये जो हमने पिछली स्लाइड देखी थी। अब डक एम्ब्रियो वैक्सीन की लो इम्यूनोजेनिसिटी होती है और नर्व टिश्यू वैक्सीन्स जो हैं वो कॉज कर सकती हैं एलर्जिक एनकेफ्लोमेलाइटिस, क्योंकि उनका क्रॉस रिएक्शन हो सकता है ह्यूमन माइलिन के साथ। इसलिए इस रीज़न की वजह से ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जो है वो प्रेफर की जाती है ताकि एलर्जिक एनकेफ्लोमेलाइटिस ना हो, एंड दैट इज़ ड्यू टू अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस रिएक्शन विद ह्यूमन माइलिन। अब दो अप्रोचेस हैं जो हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस कर ली हैं प्रिवेंशन ऑफ रेबीज इन ह्यूमंस। एक है प्री एक्सपोजर और एक थी पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन। प्री एक्सपोजर हमने डिस्कस किया था, ये उनको देते हैं जो कि हाई रिस्क ग्रुप पे हैं, जैसे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, जू कीपर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, एरियाज ऑफ हाइपर एंडेमिक इन्फेक्शन, पीस कॉप मेंबर्स, वही जो इनके पीस मिशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, जू कीपर्स हो गए, केव्स में काम करने वाले हो गए, और ये नेशनल ज्योग्राफिक और बीबीसी पे जो रिपोर्ट्स देखते हैं, हम एनिमल वर्ल्ड देखते हैं, एनिमल प्लैनेट देखते हैं, उनके लिए प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन में 3 डोजेज होती हैं, डे 0, 7 और 21 पे दी जाती हैं, या 21वें दिन देते हैं या 28वें दिन देते हैं, और बूस्टर डोज जो हैं वो भी इनके लिए ज़रूरी होती हैं, राइट। रेबीज़ वैक्सीन जो है वो यूज़ होती है आफ्टर एक्सपोजर। फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई पर्सन जो है वो एक्सपोज हुआ है एनिमल बाइट के थ्रू, तो उसको भी ये देनी होती है रेबीज़ वैक्सीन। और इसका चूँकि लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, हमने देखा था 2 वीक्स से लेके मैनी वीक्स तक हो सकता है, लिहाजा जो वायरस जो वैक्सीन में है वो इंड्यूस कर सकता है कि आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी मिल जाए। लिहाजा जो अगर इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा होता और फिर हम उसको बाइट के बाद या जो एक्सपोज हो जाता उसका इन्फेक्टेड सलाइवा से देते, तो शायद ये काम ना कर सकता। लेकिन चूंकि लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है तो वायरस जो वैक्सीनेशन में उसको टाइम मिल जाता है ताकि वो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी दे सके। पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन जो है वो क्या करती है, बोथ वैक्सीनेशन यूज़ करनी है और ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ करनी है। अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा था। तो वैक्सीन भी देंगे और हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन भी देंगे, जिसको हम RIG भी कहते हैं या ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इमीडिएट क्लीनिंग ऑफ द वोंड की करनी है। एग्जाम्पल ये है हमारी पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन की। अब व्हेन टू गिव पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, पोस्ट एक्सपोजर ये जो इम्यूनाइजेशन है, ये इसको देने का डिसीजन क्या है कि अगर कोई बंदा हो गया है और उसको देनी है, तो ये किन चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि द टाइप ऑफ एनिमल, कि एनिमल्स जो थे, ऑल वाइल्ड एनिमल्स अटैक्स डिमांड इम्यूनाइजेशन। कौन से टाइप को एनिमल ने काटा है, जिसने भी काटा होगा, जिस एनिमल से भी बाइट हुए, इम्यूनाइजेशन देनी है। उसके बाद था कि अटैक जो है डोमेस्टिक एनिमल से प्रोवोक हुआ है, क्या वो एनिमल इम्यूनाइज था या नहीं था, और अगर था तो वो ऑब्ज़र्व हो सकता है। मसलन जिस कुत्ते ने या बिल्ली ने काटा है उसको कुछ अरसे के लिए ऑब्ज़र्व किया जा सकता है या नहीं, कहीं उसमें तो एजिटेशन और वो सारा चेंज इन बिहेवियर और वो चीज़ें नहीं आ रही। और तीसरा ये होता है फैक्टर कि रेबीज़ उस एरिया में एंडेमिक तो नहीं है। अब अगर इम्यूनाइजेशन का हम डिसीजन कर लें कि हाँ इसको इम्यूनाइजेशन देनी ही देनी है, तो क्या देना है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीनेशन देनी है और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है। 5 डोजेस देते हैं हम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीनेशन की, और वो कौन कौन सी हैं, डे 0, 3, 7, 14 एंड 28। और RIG जो है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, वो कब देते हैं हम, वो सिर्फ एक दफ़ा देंगे अलॉन्ग विद द फर्स्ट डोज ऑफ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीनेशन, और दोनों डिफरेंट साइट पे देंगे, क्योंकि एक के अंदर वायरस है और एक के अंदर एंटीबॉडीज़ है। लिहाजा अगर हम एक साइट पे दे देंगे तो न्यूट्रलाइज कर देगा वायरस, और एंटीबॉडी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब जो रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है, सबसे ज़्यादा हम बाइट साइट पे देते हैं, और जो रिमेनिंग होती है वो इंट्रामस्कुलरली दे देते हैं। एनिमल अगर पकड़ा जा सकता है तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर उसमें तो नहीं कोई बिहेवियर और एजिटेशन और ये चीज़ें डेवलप हो रही, राइट। वैक्सीनेशन बाहर के मुल्कों में और यहाँ पे भी जो पेट्स रखते हैं, डॉग्स और कैट्स, उनमें भी इनएक्टिवेटेड रेबीज़ वैक्सीन होती है और उसकी रिकमेंडेड होती है।
और जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन डोज होती है वो उनकी 3 मंथ्स ऑफ एज पे होती है, बाकी उन्हें बूस्टर्स भी लगती हैं। ये बात हो रही है एनिमल्स की। सो दिस स्लाइड इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। वैक्सीनेशन किस तरह देनी है, कौन कौन सी टाइप्स हैं वैक्सीनेशन की, कौन सी वैक्सीनेशन इन दोनों में से बेहतर है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीनेशन या डक एम्ब्रियो वैक्सीनेशन। इन दोनों में से कौन सी जो वैक्सीनेशन है दैट में कॉज एलर्जिक एनकेफ्लोमेलाइटिस। प्री एक्सपोजर हम किस तरह देंगे और उनमें क्या डोजेज होंगी, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन की क्या डोज है और रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन की क्या डोज है, क्लीनिंग ऑफ वुंड हमने किस वक्त करना है, व्हेन टू गिव पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जब हमें पता है ये कि अब हमने वैक्सीनेशन देनी ही देनी है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन, और ये देते किस तरह है अभी हमने डिस्कस किया है कि मैक्सिमम हम देते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एट द साइट ऑफ बाइट और बाकी रिमेनिंग देते हैं इंट्रामस्कुलरली। अगर एक ही जगह पे देंगे तो एक में वायरस है एक में एंटीबॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी और न्यूट्रलाइज कर देंगी। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ रेबीज़ वायरस प्रिवेंशन में। अभी हम देख लेते हैं, ये देख लें एक डायग्राम में रेबिड डॉग ने दोनों को काटा है, दोनों पेशेंट्स को। एक वैक्सीनेट हुआ था बिफोर एक्सपोजर, उसको हमने वैक्सीनेशन दी, दूसरे का कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई भी थी, उसको हमने वैक्सीन भी दी और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दी। Coming to the Ebola hemorrhagic fever, and Ebola virus is the cause of Ebola hemorrhagic fever. ज़ायरे में ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था इन 1976 बिफोर आवर बर्थ, और 2014 और 2015 में वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में यहाँ पे पूरी आप ये देख लीजिए कि एपिडेमिक्स आई थी। कहाँ पे आई थी, लाइबेरिया में, साइरिया में और गुआनिया में। अच्छा ये देखिए लेफ़्ट साइड पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एबोला वायरस जल्द या बदेर पाकिस्तान पहुँच जाएगा, और ये 2014 की न्यूज़ है। Have a look on this news. Africa's Ebola outbreaks are not genetically linked. ये 9 जून 2020 की BBC की न्यूज़ है। ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ से कॉन्गो से रिलेटेड है ये। अब वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने न्यूली आइडेंटिफाइड एबोला वायरस किए वहाँ के प्रोवेंस में, और वो जो है वो डिफरेंट है जिसने पिछले दिनों में या पहले इनके लोगों को इन्फेक्ट किया था और तकरीबन 3,500 लोगों को इन्फेक्ट किया था। ये अभी जून 2020 की ही इनके पास जो है ये रिपोर्ट है, एंड दिस इज़ अवेलेबल एट द BBC। एक और रिपोर्ट है 31 मार्च 2020 की बाय न्यूज़ डेस्क इन्फेक्शियस डिजीज़ न्यूज़ की। इसमें इंडिया से रिपोर्ट हुए हैं 4th डेथ, और डिजीज़ क्या थी, दैट वाज कैसेनोर फॉरेस्ट डिजीज़ और मंकी फीवर कर्नाटका के स्टेट में। अब देखते हैं पेशेंट कैसे ये आता है। हाई फीवर, चिल्स, सीवियर हेडेक, sensitivity to light, photophobia, and often diarrhea, vomiting, and bleeding of the gums, nose, and GI. और जो कैसेनोर फॉरेस्ट डिजीज़ है दैट इज़ कंसिडर्ड अ हेमोरेजिक फीवर सिमिलर टू इट्स मोर फेमस रिलेटिव एबोला। एबोला इसका रिलेटिव है और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मॉर्टेलिटी रेट है 4 to 15% डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सपोर्टिव केयर। पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है 2 क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर केसेस इन सिंध। ये सारी रिपोर्ट्स न्यूज़ डेस्क पे इन्फेक्शियस डिजीज़ न्यूज़ के पेज पे प्रेजेंट हैं। अब आप ये देखिए कि हम लोग ड्यू टू दिस पैंडेमिक हमने किसी और डिज़ीज़ का पिछले 4 महीने में वी आर नॉट कंसर्न्ड विद एनी ऑफ द डिजीज़ेस। However, other diseases are present and they are affecting the people at the rate they want to. अब ये देखिए आपकी चौथी डेथ हुई है ये इस फीवर से इंडिया में, और पाकिस्तान में 2 क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर के केसेस आए। जो हेमरेजिक फीवर है ये कॉन्गो का हो, एबोला हेमरेजिक फीवर हो या ये कैसेनोर फॉरेस्ट डिजीज़ हो, आप ये देखें ये प्रेजेंट करते हैं हेमरेजिक के साथ। आखिर में इनमें ये मल्टीपल ऑर्गन में हेमरेज होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। सो कमिंग टू द अगेन साइन सिम्टम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हाई फीवर एंड चिल्स,
स्फीयर हेडेक, सर दर्द होगा, बुरी लगेगी उसको रोशनी, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है, और ब्लीडिंग होंगी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में से, जो कि गम्स, नोज एंड जीआईटी ब्लीडिंग है। कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वायरस, एबोला वायरस जो है मेंबर है फाइलोवायरस फैमिली का। लॉन्ग फिलामेंटस होते हैं, इसीलिए इनको फिलामेंट्स या फाइलो थ्रेड लाइक एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हैं और थाउजेंड्स ऑफ नैनोमीटर इनकी लेंथ होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, नॉन सेगमेंटेड, नेगेटिव पोलैरिटी आरएनए जीनोम में, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसमें होगा। हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है और इसके 5 स्ट्रेन्स होते हैं, और सीरोटाइप्स जो हैं वो आखिर में आपस में इसकी क्रॉस रिएक्ट करती रहती है। अब ये जो डीलिंग है इसके साथ, ये बड़ी डेंजरस है और बड़ी प्रिकॉशनरी है। बेसिक ये जो इनकी होती है ना, बायोसेफ्टी लेवल 4 जिसको हम कहते हैं, कंटेमिनेशन लेवल, ये कुछ वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ BSL-1 होते हैं जिनकी बेसिक सेफ्टी लेवल 1 के साथ डील होते हैं, कुछ के 2 होते हैं, कुछ 3 हैं, कुछ 4 हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब हम लैब्स में काम कर रहे होते हैं, जो हमारे वर्किंग बेंच हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की, आप ये कह लें, हुड्स लगी हुई होती हैं। कुछ हुड्स में आप वायरस के साथ, कुछ इतने ख़तरनाक वायरस हैं जिनमें आप उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, तो बीच में ग्लास स्लाइड या ग्लास की शील्ड लगी हुई होती है। ये वाला वायरस जो है हाईली कंटेमिनेटेड है, सबसे ज़्यादा डेंजरस डिग्री में फॉल करता है क्लास में, एंड दैट इज़ BSL, बायोसेफ्टी लेवल 4 की कैबिनेट में इसको हम डील करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला किसी PPT में दिखा दूँगी कि किस तरह की होती हैं हमारी बायोसेफ्टी लेवल कैबिनेट्स। एबोला ज़ायरे में डिस्कवर हुआ था, ये हमने पहले पढ़ लिया 1976 में। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, ये इसकी हैं आके आपकी बुक में दी हुई हैं 3-4 टाइप्स, लेकिन एबोला ज़ायरे जो है दैट इज़ मोस्ट डेंजरस टू द ह्यूमंस, तो इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी टाइप्स में सिर्फ हमने ये वाला याद रखना। रेप्लिकेशन साइकिल किस तरह होती है, बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए एनवेलप्ड वायरसेस की है। वायरॉन जो है वो एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं इसकी, ये बाइंड करती हैं सरफेस ऑफ द ह्यूमन सेल्स पे। न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। वायरॉन आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा 7 जीन्स इनटू इंडिविजुअल मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड हो जाएगी, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगी। उसके बाद इंटरेक्शन हो, मैट्रिक्स प्रोटीन्स बनेगी। मैट्रिक्स प्रोटीन क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं न्यूक्लियोकैप्सिड का आउटर सेल मेम्ब्रेन के साथ, और फिर बडिंग हो जाएगी और ये सरफेस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल से बाहर निकल जाएगी। ट्रांसमिशन इसकी क्या होती है, नेचुरल रेजर्वॉयर अननोन है, फ्रूट बैट्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये सस्पेक्ट किए जाते हैं, और मंकीज़। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ब्लड से हो सकती है और बॉडी फ्लूइड से हो सकती है। इसीलिए जो हॉस्पिटल पर्सनल हैं वो प्रॉपर PPE का आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, जैसे आजकल हो रहा है कोरोना वायरस में। इसी तरह आपको याद होगा ये 2014-15 में जो हुई थी सारी अफ्रीका में डेथ्स वगैरह, तो उस वक्त हर वक्त ये PPE, येलो कलर के पूरे ड्रेसेस और वाइट कलर के पूरे ड्रेसेस, फेस शील्ड्स, फेस गॉगल्स, ये सारी चीज़ें लगा के ये इन पेशेंट्स को साथ डील करते थे। तो ब्लड टू ब्लड भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स हो सकता है। हॉस्पिटल पर्सनल जो हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, वो ज़्यादा इनके स्पेशली रिस्क पे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हॉस्पिटल स्टाफ में सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी हो सकती है। वही बात है कि पेशेंट का ब्लड साफ़ करते हुए सिक्रेशंस हो गई, सिक्रेशन एरोजोल्स हो गई, सिक्रेशन जनरेट हो गई किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, और वो आके इनहेल कर ली या वो आके इन कांटेक्ट हो गई, तो वहाँ से भी देयर वर केसेस। रीयूज़ ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस मे कॉज दिस, रीयूज़ कर लिया। और आप देखेंगे कि जो बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं, रीयूज़ ऑफ नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं। मोर्टेलिटी रेट, एपिडेमिक जब फैला हुआ हो तो मोर्टेलिटी रेट में राइज टू 60%। हाउ द पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग, टिपिकल पाथ है। देखिए आपके फर्स्ट सिम्टम्स डे 7 to 9, अभी पहला हफ्ता है, उसमें हेडेक है, उसको थकन महसूस हो रही है, बुखार है, मसल एक्स एंड पेन्स। उसके बाद जैसे ये पहला हफ्ता ख़त्म हुआ तो 10वें दिन सडन हाई फीवर है, वॉमिटिंग साथ स्टार्ट हो गई है, और ब्लड
ब्लड के भी इसमें जो है वो आई डोंट नो ब्लड ये क्यों लिखा हुआ है, बहरहाल इसमें वॉमिटिंग करते हैं हम, और पैसिव बिहेवियर, थोड़ी सी लेथार्जी और पैसिव बिहेवियर शुरू हो जाएगा। अच्छा, डे 11 पे क्या होगा, ब्रूजिंग शुरू हो जाएगी, ब्रेन डैमेज है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ, आइज एंड एनस। ये मेरा ख्याल है पिछली डायग्राम में जो उन्होंने ब्लड किया है ना, तो मेरा ख्याल है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, या ये कह लें कि जो हेमरेज है वो अंदर शुरू हो गया, स्टार्ट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से डे 11 पे ब्रूजिंग आई है, ये इसलिए लिखा है मैंने। डे 11 पे ब्रूजिंग है, ब्रेन डैमेज है, और फाइनल स्टेजेस में जबकि दूसरा हफ्ता भी ख़त्म होने वाला, दूसरा हफ्ता जो है ये चल रहा होता है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, सीजर्स हैं, मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, और फिर डेथ है। सो दिस इज़ द टिपिकल पाथ ऑफ एबोला हेमरेजिक फीवर स्टार्टिंग फ्रॉम डे 7 टिल डे 12 और 13। अब आप देखें इसका भी कितना छोटा सा है, इसका सारा ये जो प्रेजेंटिंग पीरियड, ये CDC से लिया हुआ है, इसकी सोर्स जो है दैट इज़ CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एंड BBC। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स अभी हमने उसके साइन सिम्टम देख लिए। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 डेज हो सकता है, लेकिन 21 दिन तक भी जा सकता है। उसके बाद फिर फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, माइल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये हमने पीछे देख लिए। ब्लीडिंग स्किन में और GIT में स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा, या DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation होगी, जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। हेमरेज क्यों होता है, दे आर द रिजल्ट ऑफ सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड डेथ ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। लिम्फोसाइट्स भी इसमें कम होंगे, जिसको लिम्फोपीनिया कहते हैं। सम पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में देखा गया है पोस्ट एबोला सिंड्रोम, PES। तो PES भी देखा गया है। PES में क्या होता है, इसमें आइज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आई पेन है, ब्लड विजन है, कैटरैक्ट्स हैं, फिर आपके ईयर्स, हियरिंग लॉस, हेडेक, जॉइंट पेन्स, फैटीग एंड इंसोम्निया। तो ये है पोस्ट एबोला सिंड्रोम। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, एलाइजा है, वायरल एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं सीरम में, उसके बाद PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, IgM एंटीबॉडीज करेंगे, एंड वी हैव टू डील ऑल दीज स्पेसिमेन इन बेसिक इन बायोसेफ्टी लेवल 4, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कैबिनेट होती है उसमें और आपके बीच में एक स्क्रीन लगी होती है। आपने पिछले दिनों देखे होंगे जो कलेक्शन ऑफ कोरोना वायरस सैम्पल्स थे, तो कहीं कहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो उन्होंने छोटे छोटे केबिन्स इंस्टॉल किए थे। तो BSL उसी केबिन की हाईएस्ट फॉर्म है बिल्कुल, जिसमें जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, और हीपा फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, हाईली एफिशिएंट पर्टिकुलेट एयर मैटर्स, जो एयर को बाहर सर्कुलेट करते हैं, आप तक आने नहीं देते। तो ये BSL लेवल 4 में डील करते हैं। उसके अलावा फिर इसमें मंकी सेल्स में कल्चर कर सकते हैं, और जो कि बताता है हमें कि एबोला है या मरबर्ग है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन सपोर्टिव होगी, सिम्टोमेटिक होगी, हमने उसकी रिहाइड्रेशन का करना है, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स देखने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, LFTs उसकी हैं, लिवर डैमेज है, आपने ब्लीडिंग के ऊपर, इंटरनल हेमरेज है, इंटरनल ब्लीडिंग है, ब्रूजिंग है, उन चीज़ों के ऊपर आपने एक एम्फेसाइज करना है। उसके बाद फिर हम इसमें क्या दे सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स आपने उसका अच्छा रखना है, सीरम ग्लोब्यूलिन्स देते हैं, हम एंटीबॉडीज़ देते हैं एबोला वायरस की। और क्वारंटाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। प्रिवेंशन, अब जब बात करते हैं, प्रिवेंशन सेंटर्स जो हैं वो अब ये वाली बात है कि प्रिवेंशन सेंटर्स कहाँ होंगे कि जहाँ पे सेकेंडरी स्प्रेड ना हो। सेकेंडरी स्प्रेड किस तरह होता है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ पेशेंट सिक्रेशन एंड ब्लड। तो प्रिवेंशन जो है वो उसकी मेन एम्फेसिस करती है कि हमने सेकेंडरी स्प्रेड नहीं करना, प्रॉपर हैंडलिंग करनी है, और क्वारंटाइन ज़रूरी है 21 डेज़ का, क्योंकि वैक्सीनेशन इसकी कोई नहीं है। आजकल क्वारंटाइन का बड़ा जिक्र चल रहा है, तो एबोला हेमरेजिक फीवर हो, कॉन्गो हो, कोई भी हो हेमरेजिक फीवर, उसमें क्वारंटाइन में पेशेंट, और क्वारंटाइन इज़ के 21 डेज़ के लिए जो है वो आपने करना है। Now fighting a killer virus, there is no vaccine and no cure for the disease. ये भी अब उसकी समरी है, हेडेक, सोर थ्रोट, मसल पेन, सडन फीवर, फिर हाई ग्रेड फीवर, इंटेंस वीकनेस, फिर इम्पेयर्ड किडनी, लिवर डैमेज है, रैश शुरू होगा, वॉमिटिंग, डायरिया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग है।
आपको याद होगा 2014-15 में ये देखें प्रिवेंटिव मेजर्स में लिखा है स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ एनिमल मीट। जब कुर्बानी के दिन आए थे तो उसमें बड़ा ज़्यादा कहा गया था कि कुर्बानी के जानवरों में क्या क्या चीज़ आपने चेक करनी है, कुर्बानी की खाल को नमक लगा के फ़ौरन डिस्कार्ड कर देना है, कुर्बानी के गोश्त में आपने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स देखनी है। सो आई रिमेंबर दैट कुर्बानी ईद उल अज़हा इन 2014, 15 और 16 में ये आई थी, जिस पे बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स हुए थे बिकॉज ऑफ दिस हेमरेजिक फीवर। कमिंग टू द इन क्लास एक्टिविटी, चूज वन ग्रुप अमंग योरसेल्व्स। अब दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। कुछ लोग ग्रुप 1 ले लें, कुछ लोग ग्रुप 2 में शामिल हो जाएं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दीज ग्रुप्स। ग्रुप 1 से मेरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पर्सन, हाउ विल यू डायग्नोज एंड मैनेज द केस। ये जो तस्वीर है इसमें बंदे को क्या हुआ है, अब इसकी आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे और मैनेज किस तरह करेंगे। इसको बाइट हो गया है तो पोस्ट एक्सपोजर अब आपने इसके साथ क्या करना है, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर पेशेंट। एंड ग्रुप 2 विल सी देयर आर 3 फिगर्स। एक होता है पिक्टोरियल डिपिक्शन एंड अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। पहले पिक्चर देख लेते हैं हम, इबोला से रिलेटेड है, हाई ग्रेड फीवर है, 101.4। अच्छा, 101.4 को हाई ग्रेड कहेंगे, लो ग्रेड कहेंगे, आजकल क्या क्राइटेरिया है हाई ग्रेड का। और आखिरी तस्वीर में इन्होंने कोई एपिडेमियोलॉजी दिखाई हुई है, युगांडा, सूडान, तंजानिया। एंड द क्वेश्चन इज हाउ द पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग, where the disease is prevalent, what is PES, how will you diagnose and manage the case. So pictorial diagrams हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 के लिए पिक्चर ये बनी हुई है, साथ में ये रेबीज़ वैक्सीनेशन की पिक्चर है। इधर हमारे पास एबोला है, हाई ग्रेड फीवर है, डायग्नोज कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है केस। Our upcoming task for the next coming days, again this is a pictorial depiction. ये कोई बच्चा है और इसको कतरे पिलाए जा रहे हैं, so you know better than me that what it could be. Next we will discuss ecovirus infection, norovirus है, reovirus है, और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह next upcoming days में we will try to cover. Thank you so much for your attention. Stay blessed and Allah Hafiz.